Hello everyone, I hope you all are having a great day so far. My name is Pushpendra Nathani and I welcome you all on my YouTube channel. So as usual, I was going through the chat box where I have seen many of you have cleared the interview and become academic specialist in Byju's. So to all of them, I would like to congratulate to become a part of Byju's. But on the same time, I also saw so many queries asked by the different candidates. So in this video, I am going to cover the most oftenly asked queries by the candidates, and in the upcoming video, I will cover the next queries. ओके सो इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक. क्या होप योर डाउट्स मे बी क्लियर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. The first question is asked by Antidote Guru. I think he or she has its YouTube channel, and he asked about the age limit, right? So I must tell you that there is no age limit yet in the rules. You can be above 30, 35, 40. Okay, so you can apply for this post. So I hope you get my answer. So second is asked by Monica Tiwari regarding what to write in CTC and the time period if not working. That means she's trying to say that if a fresher apply for this post, so what she will write in CTC case. CTC is all about salary, right? And time period. So you can leave it option with the nil, and time period also nil, because if you write something, if you show you are an experienced, so you have to show your relieving certificate, your experience certificate, as per as your salary, last 3 months salary. For this you have to upload your bank statement like your passbook or something else. So it's better if you are fresher, so please write a nil, and in case of CTC and in case period you will write nil options. The third question is asked by Manik Grover and many more regarding Wi-Fi. So first of all, I would tell you that the Byju's is going to pay 800 rupees as an allowance in your salary, and for that you will not don't need to upload any documents or any bill. So that means that if you don't have Wi-Fi option right now, so please avail it, and please make arrangement of Wi-Fi, and the internet bill of 800 rupees is to be paid by the Byju's as an allowance, and for that you don't need to show or upload any document or bill. I hope I am clear till yet. Okay, so the next question is asked by Lavender Blossom YouTube channel, I think, and asking about undergraduate can apply. Yes, of course, if you are undergraduate pursuing BSc, you can apply that, and I have seen many candidates in this YouTube channel and in chat box that they have cleared in very comprehensive way, and definitely if you are undergraduate you can apply for this post. The next question asked by Zaid Mirza about PF and ESI. Okay, so PF, as everyone knows, Provident Fund, and ESI, Employment State Insurance. So actually what PF is, Provident Fund एक्चुअली में आपकी टोटल सैलरी का कुछ परसेंट आपका होता है, एंड कुछ परसेंट जो एम्प्लॉयर वो सबमिट करता है. सो जब आपकी सैलरी CTC बनती है तो आपका पोर्शन तो आपकी सैलरी में इंक्लूड होता है, बट द एम्प्लॉयर पोर्शन विल डिडक्ट फ्रॉम योर सैलरी. दैट मीन्स अगर आप ऑलरेडी वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपको कुछ नहीं करना है. आप जब इनरोल होंगे यहाँ पे तो आपको अपना पहले का PF नंबर देंगे, आप वो अपना यहाँ होगा, वो कंटिन्यू हो जाएगा. बट इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एज अ न्यू, सो यू विल गेट अ न्यू PF नंबर. तो PF में क्या होता है कि सैलरी का 15-10% कुछ होता है, 6% वो हमारा कंट्रीब्यूट होता है, और उतना ही पेमेंट जो हमारा एम्प्लॉयर होता है उसका होता है. सो हमारा वाला पोर्शन तो सैलरी में आ जाएगा, बट जो एम्प्लॉयर है उसका पोर्शन हमारी सैलरी में नहीं आता है, वो डिडक्ट होता रहता है. वो बाद में हमारे जो कहते हैं प्रोविडेंट फंड इकट्ठा होता रहता है, जब आप लास्ट में जब छोड़ेंगे तब आपको उसका पैसा मिलता है. और ESI आपकी नहीं कटती है. ESI स्टैंड फॉर एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस. अगर आप कटवाना चाहते हैं सो यू कैन अप्लाई एज पर योर चॉइस. नेक्स्ट इज आस्क्ड बाय ज्योति चौगले एंड Nishi Khan regarding kits and days. Yeah, as I told you that kits जो जनरली मिल रहे हैं वो पहले तो जनरली 15-16 डेज में मिल जाते थे, बट ड्यू टू कोरियर एंड कोरोना वायरस सो इट हैज़ बीन डिलेड बाय अराउंड 5 to 6 days. दैट मीन्स वंस यू ज्वाइन, सो विद इन 20 or 21 days you will get 21 or 22 days after your joining you will get your kit as well as assets, and they both come separately. Okay,
सो इसी में कईयों ने पूछा था कि वेदर दे विल गेट दिस बाय पोस्टर और कोरियर. डेफिनेटली यू विल गेट बाय कोरियर. वंस यू गेट दिस किट्स, सो नेक्स्ट डे एक कंफर्मेशन कॉल आता है बायजूस से कि या आपको ये एसेट्स और किट्स मिल चुके हैं. सो क्यों? बिकॉज दे गो ट्रैक करते रहते हैं इन सब चीज़ों की, वेदर द राइट पर्सन हैज़ गॉट इट और नॉट. सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स. एंड नेक्स्ट इज आस्क्ड बाय अरविंद सर रिगार्डिंग क्रेडिट सैलरी. देखिए, सैलरी जो होती है जनरली वो 1 तारीख को आ जाती है, अनलाइक इट्स ए पब्लिक हॉलीडे. अदरवाइज पब्लिक हॉलीडे होगा तो वो नेक्स्ट डे आ जाएगा आपके. एंड बेसिकली जो अब आप लोगों की ज्वाइनिंग जिसकी लेट हुई है उसका आइडिया अभी नहीं है, बट जिसकी जो जनरली जो प्रोसीजर होता है कैलेंडर ईयर होता है 25 to 25 चलता है. दैट मीन्स इफ़ आई टॉक अबाउट दिस मंथ, राइट, सो आने वाली 1 फरवरी को जो सैलरी मिलेगी वो 25 दिसंबर से 25 जनवरी तक के काम की मिलेगी. सो 1 मार्च को आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपकी 25 जनवरी से, मतलब 26 जनवरी से लेके आपकी 25 फरवरी तक की आपको सैलरी मिलेगी. सो 25 to 25 रन होता है यहाँ पे सैलरी का. सो दैट्स वाई जो आपकी जो अटेंडेंस होती है उसमें भी बोला जाता है कि ऑन ड्यूटी जो होती है आपके 25 से पहले कंफर्म करवा लीजिएगा बाय मैनेजर. बिकॉज 5 दिन जो होता है 25 से 30 वो उसमें विंडो सारी क्लोज हो जाती हैं, उस समय पूरा प्रोसेस टीम अपना काम करती है. तो सैलरी जनरली 25 to 25 चलती है. एंड कईयों ने पूछा कि कितनी सैलरी है, तो वो ऑफर लेटर में आपको मिल जाती है. जनरली ट्रेनिंग पीरियड में थोड़ी कम होती है बिकॉज उसमें कोई इंसेंटिव्स नहीं होते हैं, उसमें खाली फिक्स सैलरीज होती हैं. बट वंस यू गेट इन टू द सेशंस, लाइक सेशंस में आप जनरली 1-1.5 महीने बाद एंट्री हो जाती है ट्रेनिंग के बाद, तो वहाँ से आपको व्हाट वी कॉल इंसेंटिव्स मिलने लग जाते हैं. इंसेंटिव जो होता है वो टोटली आपकी परफॉर्मेंस एंड ऑडिट के बेसिस पे होता है, रेटिंग के हिसाब से होता है. और जो तीसरा पॉइंट है इसमें वेरिएबल पे आपको ईयरली बेसिस पे मिलती है, जो आपकी ईयरली पे टोटल एवरेज परफॉर्मेंस रहेगी उसके बेसिस पे बनेगी. तो अगर मैं समराइज करूं तो टोटल सैलरी जो आपकी फिक्स्ड प्लस इंसेंटिव प्लस वेरिएबल के हिसाब से बन जाती है. और एक क्वेश्चन और पूछा था रिगार्डिंग कि क्या इज़ एवरीथिंग रन्स ऑन इंग्लिश. सो जनरली प्राइमरी लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, राइट. सो बायजूस एक नए सेशंस इंट्रोड्यूस कर रहा है, रिसेंटली करें हैं, जिसमें रीजनल भी यूज़ कर सकते हैं आप. लाइक सपोज यू आर टीचिंग इन इंग्लिश, राइट, एंड समवन स्टूडेंट आस्क इन रीजनल लैंग्वेज, सो यू कैन आंसर देम इन रीजनल, बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो मेंटेन द डेकोरम ऑफ क्लास एंड कम्युनिकेट इन इंग्लिश. So you can use your regional language meanwhile you're teaching to make student understand better, but not completely in that language. Your command over English must be good and your whole session majorly runs on English. And the last question again is regarding public holiday. Not public, it's optional holiday. What is optional holiday? Actually what happens, आपको पता है लीव ये सब आपके अवेल कर सकते हो, बट इसके बाद एक नेशनल हॉलीडेज़ होती हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है. सो व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन डू, इन्होंने कुछ 14-15 डेज आपके कैलेंडर्स में दे रखे हैं जिसमें ऑप्शनल हॉलीडे के नाम से बोला हुआ है. जैसे आप मान के चले 1 तारीख शायद वो तो कंपनी डिक्लेयर्ड था वो. सिमिलरली 14-13 तारीख जो जनवरी थी दैट वाज ऑप्शनल हॉलीडे. 14 शायद मकर संक्रांति वाज ऑप्शनल हॉलीडे, या 13 में से एक था. ऐसे ही पूरे साल में इन्होंने 14 डेज में इन्होंने डिसाइड करेंगे दीज आर द ऑप्शनल हॉलीडे. सो एज अ इंडिविजुअल आप 14 डेज हॉलीडे नहीं ले सकते. यू कैन चूज एनी 4 आउट ऑफ दिस 14. यू हैव एन ऑफर टू अवेल एनी 4 आउट ऑफ दिस 14 ऑप्शनल हॉलीडे मैंशन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. इसके अलावा अगर आप लेते हो तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉस ऑफ पेमेंट, बट if you take off 4, so there will be no loss of payment for these 4 days. So this is actually optional holiday. अब आपको कौन से 4 लेने हैं वो आपको डिसाइड करने हैं. पूरे साल में है 25 दिसंबर भी आई थिंक इट्स एन ऑप्शनल हॉलीडे. तो आपको कैलेंडर में जब आप इसके पोर्टल में जाएंगे सो यू विल बी एबल टू सी द ऑल 14 डेज. सो आउट ऑफ 14 you can avail any 4 day as an optional day, optional holiday, sorry. So these are the most queries asked by the candidates. In the next video I will cover the next queries asked by the students. So for this I request each and everyone to comment your doubts, and any query you have I will try, and I will you feel free to ask anything, and I will be very happy to help you out. Okay, if you like this video please subscribe it and share to the needy one.
Thank you and have a nice day.